رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. میرے دینی و اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے نماز کے اندر پائے جانے والی بعض غلطیاں، الاخطاء الشائعہ فی الصلاۃ. بلا شبہ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے دوسرا اور اہم رکن ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے دوسرا رکن نماز ہے. اسلام کے ارکان میں سے کسی بھی رکن کا اگر انسان انکاری ہوا، نہیں مانا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا. انہی 5 ارکان میں سے دوسرا رکن کیا ہے؟ دن و رات میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات والحج وصوم رمضان. میرے بھائیو، تو یہ نماز یہ دوسرا رکن ہے اور نماز کی بڑی اہمیت ہے. آج ہم اور آپ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، نماز پڑھتے تو ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں تو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. ان نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے. اللہ نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے. جب جنتی بے نمازیوں کو دیکھیں گے جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے تو پوچھیں گے، ماں باپ اگر نمازی ہیں جنت میں، بیٹے بیٹیاں بے نمازی ہیں جہنم میں، پوچھا جائے گا، سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے آج جہنم کی آگ میں چل رہے ہو؟ تو وہ بیٹے بے نمازی، بیٹیاں بے نمازی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. پتہ ہی چلا بے نمازی کا انجام کیا ہے بھائی؟ جہنم. جہنم. اور نمازیوں کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت. جیسا کہ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر نماز کے واجبات ارکان کا خیال کرتے ہوئے مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون، ایسے ہی لوگوں کو اللہ وارث بنائے گا. کس چیز کا؟ روپے پیسے کا وارث نہیں. الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وہ لوگ وارث ہیں. جنت الفردوس هم فیہا خالدون، کی جنت کے وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. نماز کی اتنی بڑی اہمیت کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت کی ہے اور نماز چھوڑنے والوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. اس کا ٹھکانہ، نماز چھوڑنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو نماز پڑھنے والے نہیں ہیں وہ ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے، نماز پڑھنے والے ہی ہمارے حقیقت بھائی ہیں. اللہ نے کہا فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر انسان توبہ کر لے، نماز کو قائم کرے، زکات کی ادائیگی کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہی تمہارے بھائی ہیں. وہ ہے کہ بے نمازی ہمارے بھائی ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. نماز پڑھنے والوں کو اللہ نے ہمارے بھائی بنایا ہے. تو میرے بھائیوں، نماز کی اتنی بڑی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پر بلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز دیا تھی. یاد ہے نا؟ کم کر کے کتنی رکھی گئی؟ 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے ثواب اتنی ہی ہے، 50 نمازوں کا ثواب ہمیں ملے گا، ہے کہ نہیں؟ تو نماز ہمارے نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے. کس کے طریقے پر؟ ہاں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, तुम उसी तरह नमाज पढ़ो जैसा कि तुम सबने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो नमाज हमारी नमाज नबी के तरीके पर हो, वरना हमारी नमाज बर्बाद हो जाएगी, हम पकड़े जाएंगे अल्लाह के यहाँ। सबसे पहले अल्लाह ताला अपने हुकूकुल्लाह में नमाज के बारे में पूछेगा, अव्वलु मा युहासबु बिही अब्दु यौमल क़ियामह अस्सलात फ़इन सलहत सलह साइरुल अमली व इन फसद फसद साइरुल अमल। अगर सबसे पहले अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदों से नमाज के बारे में पूछेगा, नमाज दुरुस्त रही सारे अमाल दुरुस्त निकलेंगे, नमाज ही खराब निकले बाकी अमाल भी खराब हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज हमारे नबी के तरीके पर, वरना अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, मोमिनो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कहा मानो, अपने अमल को बर्बाद न करो। नबी के तरीके से हट के हमारी नमाज होगी, मुमकिन है कि हमारा अमल बर्बाद हो जाए। इसलिए हमें चाहिए, कोशिश करना है कि हमें अपनी नमाज को बचाना है। और मेरे भाइयों, ये जितने सवाल भी आएगा इसलिए गौर से सुनना है। अब आइए, नमाज में जो क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं उसकी तरफ मैं इशारा करूं। सबसे पहली बात सुन ले मेरे भाइयों, गुजारिश है अपनी जगह बैठ जाएं। मेरे भाइयों, वजू होकर हम लोग नमाज पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग वजू बनाने में भी देखा ही जाता है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे आज़ाए वजू का हिस्सा जो है सूखा रह जाता है, बाजू सूखा रह गया, तो नमाज हमारी दुरुस्त नहीं होगी अगर वो वजू दुरुस्त नहीं रहा तो, ठीक है। इसलिए वजू सही करना है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, नमाज अहम इबादत है। नमाज हमारी नबी के तरीके पर होनी चाहिए। देखा यह जाता है कि बहुत सारे साथी जब नमाज के लिए इकामत होती है, तकबीर होने लगती है, खूब दौड़ कर आते हैं। दौड़ते हुए आते हैं कि नहीं आते हैं भाई देखा है आप लोगों ने, खूब दौड़ करके हाँफते हुए यहाँ तक के रुकू सजदा भी इस तरह से हाँफते हुए करते हैं कि नहीं। ये बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। सुन ले मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उक़ीमतिस सलात फला तअतूहा तसअूना वअतूहा तमशूना अलैकुमुस सकीना फमा अतरतुम फसल्लू वमा फातकुम फअतिम्मू, रवाहुल बुखारी। सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए इकामत कही जाए, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर होने लगे, तो अल्लाह के नबी ने कहा, फला तअतूहा तसअूना, दौड़ करना आओ। अल्लाह के नबी जमात पाने के लिए दौड़ कर आने से मना फरमाया है। नबी की बात माननी है कि नहीं माननी है? हाँ भाइयों, नबी की बात मानना है ना। अल्लाह के नबी ने हमें मना किया है रकत पाने के लिए दौड़ कर आने से, और कहा वअतूहा तमशूना, चल कर आओ। इसी पर बस नहीं किया, बल्कि जब चल रहे हो अलैकुमुस सकीना, यानी इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आओ। तो कहेंगे कि मौलाना हमारी रकत तो छूट जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फमा अदरकतुम फसल्लू, जितनी रकत तुम इमाम के साथ पालो पढ़ लो, वमा फातकुम फअतिम्मू, जो रकत छूट जाए बाद में पूरा कर लो, बाद में पूरा कर लो। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि रकत पाने के खूब तेजी में दौड़ के आओ एक दूसरे को रुकना मारते हुए, नहीं। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, रुकना है कि नहीं। अल्लाह ने कहा, वमा आताहू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो कुछ दें ले लो, किन बातों से रोक दें रुक जाओ। अल्लाह के नबी ने बातों से हमें रोका है, रुकना है कि नहीं रुकना है। हाँ, दौड़ के नहीं आगे जाना है नमाज पाने के लिए, क्योंकि नबी का हुक्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और नबी की बात मानने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। एक दूसरी बात, जब इंसान नमाज पढ़ने के लिए सफ में जाता है, खड़ा होता है, तो खड़े होते हुए मेरे भाइयों, अगर किसी भाई को अगर तकलीफ है, कमर में दिक्कत है, तो जितनी ताकत हो ताकत के हिसाब से खड़ा हो, है कि नहीं। और फिर
नहीं खड़ा हो सकता है, तब जाके वो क्या करे, कुर्सी वगैरह हो तो बैठ जाए। ऐसा नहीं कि पहले ही से बैठने का इंतजाम कर ले। साथियों से गुफ्तगू करेंगे तो लंबा लंबा खड़े रहेंगे और नमाज के लिए जाएंगे तो पहले से कुर्सी पर बैठ जाएंगे। नहीं, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह ने कहा जितनी ताकत हो ताकत हिसाब से अल्लाह से करो। और फिर हदीस आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्हें बवासीर की बीमारी थी। कानत भी बवासीर, ये कहते हैं कि मुझे बवासीर की बीमारी थी, साहब रसूल हैं। तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा कि अल्लाह के नबी मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्ले काइमन, खड़े होकर नमाज पढ़ो, फइल्लम तस्तति फकाइदन, अगर खड़े होने की ताकत ना हो तब बैठ कर नमाज पढ़ो, फइल्लम तस्तति फअला जंबिन, अगर बैठ कर भी नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तब लेट कर पहलू पर नमाज पढ़ो। ताकत है खड़े होने की तो बैठ कर नमाज दुरुस्त होगी नहीं। फर्ज नमाज, नफली नमाज जायज है, बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन सवाब आधा मिलेगा, सवाब आधा मिलेगा। तो इन बातों का खास ख्याल है। फर्ज नमाज बगैर मजबूरी के, बगैर उज्र के, बगैर परेशानी के बैठकर दुरुस्त नहीं है। अब आइए, बहुत सारे साथी मेरे भाइयों करते क्या है कि सफ में, देखिए मेरे भाई बड़ी गलती, जब सफ में खड़े होते हैं तो पांव नहीं मिलाते हैं। जब एक आदमी पांव मिलाने के लिए आता है तो धक्का मारता है उधर, जब यानी एक पिता चार उंगली। भाई ये दलील आपने कहां से लाया? अल्लाह के नबी ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, तुम उसी तरीके से नमाज पढ़ो जैसा कि तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। आप मोहम्मदी हैं, नबी की सुन्नत क्या पढ़ाने वाले हैं, सुन लें। कोई भी मैं बात करता हूं पॉइंट के साथ, दलील के साथ, मेरी अपनी बात नहीं है, दलील इब्न माजा की रवायत है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, जो लोग सब पांव से पांव मिला के खड़े होते हैं उनके लिए कितनी बड़ी बशारत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अल्लज़ीना यसलूना अस्सुफूफ व मन सद्द फुरजतन रफ़अल्लाहु बिहा दरजा, रवाहु इब्न माजाह व सहहहु अलबानी। क्या कहा अल्लाह के नबी? सुन ले मेरे भाइयों, बहुत सारे भाई ये गलतियां करते हैं, पांव से पांव नहीं मिलाते हैं। देखिए क्या फायदा है, अल्लाह के नबी ने किस तरह पांव मिलाने का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अल्लज़ीना यसलूना अस्सुफूफ, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआ करते हैं जो सबको आपस में मिलाते हैं, मिलके खड़े होते हैं। सुन ले मेरे भाइयों, अगर वाकई अल्लाह से और नबी से मोहब्बत है, अल्लाह ने नबी की बात मानने का हुक्म दिया है और नबी यहाँ सब दो भाइयों को, नमाजियों को आपस में, तो जो इंसान, जो नमाजी दो नमाजियों के बीच की जगह को मिलाएगा, पाई गई जगह को बंद करेगा इस तरीके से पांव मिला करके, अल्लाह उसके जरिए से उनके दर्जात को बुलंद फरमाएगा। जन्नत के अंदर दर्जात उसके बुलंद होंगे। किन लोगों के? पांव हटाने वालों के नहीं, पांव मिलाने वालों के दर्जात बुलंद होंगे, है नहीं? ये गलतियां देखी जाती हैं। सुनने मेरे भाइयों, ये ना कहें हम हनफी हैं, हम फला हैं। भाई हनफी से पहले मोहम्मदी हो, सब मिला के खड़े हो, इस बात का खास ख्याल रहे। पर हमारे मशाइख आ गए हैं, बातें बहुत सारी हैं नमाज के अंदर पाई जाने वाली गलतियां, और इसी तरीके से आखिरी बात कहकर मैं बात को खत्म करूं। सुनिए मेरे भाइयों, बहुत सारे साथी आ जाते हैं और बगैर सुन्नत पढ़े हुए बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा उक़ीमतिस सलात फला, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा दखल अहदुकुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकअतैन, जब कोई नमाजी मस्जिद में आए तो ना बैठे यहाँ पे दो रकअत पढ़ ले। बगैर 2 रकअत पढ़े हुए आपको मस्जिद में बैठना नहीं है। 2 रकअत तहियतुल मस्जिद पढ़ लेंगे, उसके बाद ही बैठेंगे। सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है। लेकिन याद रहे एक गलती आखिरी, तो मैं बता रहा हूँ आपकी बहुत सारी गलतियां हैं। बहुत सारे साथी फजर की नमाज में जमात खड़ी हो गई है, जमात खड़ी हो गई है, आम वक्त में तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फजर की सुन्नत पाबंदी तो होनी चाहिए।
لیکن ایسا نہیں ہے کہ فجر کی رکعت آپ چھوڑ دیں، فجر کی فرض 2 رکعت چھوڑ دیں اور سنت میں لگے رہیں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. صحیح بخاری کا حدیث ہے جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے، تکبیر ہو جائے، اس وقت کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. اگر آپ سنت پڑھ رہے ہوں، ابھی بہت ساری سنت باقی ہیں فجر کی، ابھی آپ نے شروع کیا ہے، توڑ کر کے آپ کو فرض فجر میں مل جانا ہے. دیکھیں گے 4 ادھر ہے، 5 ادھر ہے، ادھر دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں، کھمبے کے پیچھے کھڑے ہیں، سنت میں لگے ہوئے، یہاں تک فجر کی 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی. تو کیوں بھائی؟ ہمارے مولانا یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے مولانا نے کہا کہ سنت پر کہیں فجر میں ملنا ہے. یہ مولانا کی بات ماننا ہے یا نبی کی بات ماننا ہے؟ اللہ کے نبی نے منع کیا اور اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اللہ کے رسول جن باتوں کا حکم دے رہے ہیں مانو، جن باتوں سے روکتے رک جاؤ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نماز کی اصلاح کرنے کی اللہ کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. ہاں بھائی اچھا بھائی، وہ چند غلطیاں ہم نے نماز کے تعلق سے بیان کیا. کوئی آدمی ہے جو میں نے جو غلطیاں بیان کی ہیں ان میں سے وہ آدمی آئے جو یہ کہے کہ ہم بھی یہ غلطی کرتے تھے، آج کے بعد ہم غلطی نہیں کریں گے. ہاں بھائی، کوئی آدمی ہے جو یہ کہے کہ ہم یہ غلطی کرتے تھے، آج کے بعد ہم یہ غلطی نہیں کریں گے. چلیں آئیں. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমরা যখন নামাজে দাঁড়াই অনেক সময় দেখা যায় অনেকে পাশে দাঁড়াইতে গেলে অনেকে ফাঁক রাখে এবং গ্যাপ রাখে, গ্যাপ থাকে। আমরা যারা নামাজ পড়ি তারা চেষ্টা করবো যে ভাগের সাথে ভাগে মিলিয়ে নামাজ এবং জামাতের সাথে নামাজ পড়ার। অনেক সময় দেখা যায় কি আমরা দৌড়ে এসে জামাত করি, 2 আঙ্গুল যে মিলাতে হয় এটা আমরা খেয়াল রাখি না। তো আমরা চেষ্টা করবো যে 2 আঙ্গুলের সাথে যে অপর ভাই যে দাঁড়াবে ওই ভাইয়ের সাথে আঙ্গুলের সাথে মিলিয়ে নামাজ পড়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। এবং আমিও চেষ্টা করবো যে ওই ভাইয়ের আঙ্গুলের সাথে যেন আঙ্গুল মিল থাকে। হ্যাঁ, हमारे गलती होते हैं नहीं माशाल्लाह. ये कह रहे हैं कि अब हम पाँव मिला के खड़े होंगे. देखिए ये भाई आप पाँव मिला करके खड़े होगा नमाज में इंशाल्लाह. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर.